بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کی چوتھی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ظفر نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سیریز کی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے بارے میں ڈسکس کیا، اس کے الیکشن کب ہوئے، وہ کانسٹیٹیوٹ کیسے ہوئی، وہ نوٹیفائی کیسے ہوئی، اور آخر میں اس کا جو پہلا سیشن تھا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا، جو کہ 10 اگست 1947 کو ہوا کراچی میں، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا۔ آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو آئین بنانے کے سلسلے میں کیا چیلنجز درپیش تھے، وہ کون سے کویسچنز تھے، وہ کون سی کنٹروورسیز تھیں جن کو آئین بنانے سے پہلے سیٹل کرنا ضروری تھا تاکہ ان پرنسپلز کو آئین کا حصہ بنایا جا سکتا۔ تو بنیادی طور پہ 7 ایسے سوالات تھے، 7 ایسی کنٹروورسیز تھیں جو کہ ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو درپیش تھیں۔ ان کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، کویسچن اوور دا رول آف ریلیجن ان دا کانسٹیٹیوشن۔ نمبر 2، کویسچن اوور رول آف مائنورٹیز اینڈ رائٹس آف مائنورٹیز۔ نمبر 3، کویسچن اوور نیشنل لینگویج۔ نمبر 4، کویسچن اوور سینٹر پروونس ریلیشنز۔ نمبر 5، کویسچن اوور اسٹیٹس آف پرنسلی اسٹیٹس۔ نمبر 6، کویسچن اوور فرینچائز۔ اینڈ نمبر 7، کویسچن اوور ڈسٹریبیوشن آف سیٹس آف فیڈرل لیجسلیچر یا سینٹرل لیجسلیچر امنگس دا فیڈریٹنگ یونٹس۔ تو اب ہم ان 7 ایشوز کو 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کویسچن اوور دا رول آف ریلیجن۔ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا۔ پاکستان کی عوامی آراء اور پاکستان کی سیاسی قیادت کی اکثریتی رائے یہ تھی کہ پاکستان کا آئین اسلامی اصولوں پہ مبنی ہونا چاہیے، لیکن قیام پاکستان کے وقت ایک کثیر تعداد جو تھی پاکستانی عوام کی، وہ غیر مسلموں پہ مشتمل تھی۔ فرح ناز اصفہانی کی کتاب پیوریفائنگ دا لینڈ آف پیور کے مطابق ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن پاکستان میں 23% نان مسلم تھے۔ پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے 69 ممبرز میں سے 18 کا تعلق غیر مسلموں سے تھا۔ تو یہ جو ہمارے نان مسلم بردن تھے، دے ور ان فیور آف سیکولر کانسٹیٹیوشن۔ ایون مسلم کمیونٹی میں بھی جو سیکولر ایلیمنٹ تھے وہ بھی اے ریلیجیس کانسٹیٹیوشن کی فیور میں تھے۔ اور 11 اگست کی 1947 کی جو قائد اعظم صاحب کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں ڈیلیور کی گئی سپیچ ہے، اس سے بھی شاید یہ نان مسلم اور سیکولر ایلیمنٹس نے یہ کنسٹرو کیا یا یہ پرسیو کیا کہ قائد اعظم صاحب پاکستان میں اے ریلیجیس یا سیکولر کانسٹیٹیوشن بنانا چاہتے ہیں۔ جیسے قائد اعظم صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا کہ یو مے بلانگ ٹو اینی ریلیجن، کاسٹ اور کریڈ that has nothing to do with the business of the state۔ لیکن کسی اور موقع پہ قائد اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ let us lay down the foundations of our democracy on the study of truly Islamic ideals and principles۔ ایک امریکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے قائد اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ the constitution of Pakistan has yet to be framed by the Pakistan's constituent assembly۔ I don't know what the ultimate shape of the constitution is going to be, but I am sure that it will be a democratic type embodying the essential principles of Islam۔ قائد اعظم صاحب کی باقی بھی تقریروں سے، ان کی سٹیٹمنٹ سے یہ کنسٹرو کیا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم صاحب تھیوکریسی کے خلاف تھے، ملائیت کے خلاف تھے، لیکن وہ ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے تھے پاکستان کو، ایک ایسا آئین دینا چاہتے تھے جو کہ ڈیموکریٹک پرنسپلز پہ بیسڈ ہو اور اس میں اسلام کے جو زرعی اصول ہیں ان کو بھی انکارپوریٹ کیا جائے۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی کیا سوچ تھی، اس کا اندازہ جب 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے تو اسمبلی کے جو غیر مسلم ممبر تھے کرن شنکر رائے، انہوں نے جو سپیچ دی اس کا چند لائنیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارے غیر مسلم بھائی کیا سوچ رہے تھے۔ رائے صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا کہ ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ، یعنی وی نان مسلمز، سر اف دا پاکستان وچ یو ہیو ان یور مائنڈ مینس اے سیکولر ڈیموکریٹک اسٹیٹ، اے اسٹیٹ which will make no difference between a citizen and a citizen, which will deal fairly with all irrespective of caste, creed or community, I assure you that you shall have our utmost cooperation۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے نان مسلم بردن تھے ان کا جو اسٹیٹ آف پاکستان سے کوآپریشن تھا
वो स्टेट के सेक्युलर क्रीडेंशियल्स पे इनकम्बेंट था, डिपेंडेंट था, कंडीशनल था। तो यह सवाल सेटल करना जरूरी था कि रिलीजन का रोल क्या होगा। दूसरा सवाल, रोल एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज यानी नॉन मुस्लिम्स। पाकिस्तान की तहरीक में नॉन मुस्लिम्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जोगिंदर नाथ मंडल साहब कायद आज़म साहब के करीबी साथी थे, पाकिस्तान की कैबिनेट के लॉ मिनिस्टर थे, पहले लॉ मिनिस्टर, और उसके अलावा पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो पहला सेशन था 10 अगस्त वाला, वो भी उन्होंने चेयर किया। वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, और आगे 11 अगस्त का सेशन भी कायद आज़म साहब की सीट एज्यूम करने से पहले, प्रेसिडेंट बनने से पहले मंडल साहब ने चेयर किया। इस तरह और बड़े नाम, एसपी सिंघा, जिनके कॉस्टिंग वोट की वजह से पंजाब जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना। उनका ताल्लुक ऑल इंडिया क्रिश्चियन लीग से था, और उन्होंने कायद आज़म साहब की एश्योरेंस पे पाकिस्तान की फेवर में वोट दिया। ऑल्दो ये फैक्ट कंट्रोवर्शियल है, लेकिन रज़ा काज़मी अपनी किताब कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के पेज नंबर 256 के पैराग्राफ नंबर 2 में इस बात को एंडोर्स करते हैं। तो और बहुत सारे हमारे नॉन मुस्लिम भाई थे जिनका पाकिस्तान की तहरीक में और पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करने में एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल था। तो यही वजह थी कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो इस बात का इदराक था, वो कॉग्निजेंट थे इस फैक्ट के माइनॉरिटीज़ के राइट्स को पाकिस्तान में किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। यही वजह है कि जब 12 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का तीसरा सेशन हुआ, तो उसका सबसे पहला जो आइटम था, उसमें एजेंडा आइटम, उसमें नवाबजादा लियाकत अली खान साहब की तहरीक पे एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का नाम था कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। तो आप देखें कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के सिलसिले में जो पहला स्टेप लिया गया, जो पहली कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, उसको भी जो आपके माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो टास्क असाइन किया गया। तो लेकिन प्रिसाइजली उनके राइट्स क्या होंगे ये डिटरमिन करना भी ज़रूरी था। तीसरा इशू नेशनल लैंग्वेज का था। ये वो इशू था जिसने बदकिस्मती से ईस्टर्न और वेस्टर्न विंग यानी हमारे बंगाली भाइयों में और वेस्ट पाकिस्तान में जो एक एक्रीमोनियस फीलिंग्स डेवलप हुई, उसको ट्रिगर किया। पाकिस्तान की पॉपुलेशन में 55% बंगाली थे। पाकिस्तान की क़यादत ने बहुत शुरू में यह ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान सिर्फ और सिर्फ उर्दू होगी। बंगालियों को इस बात पे इतराज़ था। बंगालियों का ख्याल था कि उर्दू नाफिज होने से 55% बंगाली इलिटरेट हो जाएंगे। मार्च 1948 में जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका विजिट किया, तो जब उन्होंने इस बात को रीअसर्ट किया कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ उर्दू होगी, तो कायद आज़म साहब को की इस बात को एजिटेट किया गया, और इस लैंग्वेज इश्यू ने इतना अगली टर्न ले लिया कि 21 फैब 1952 को जब सेक्शन 144 इम्पोज थी ढाका में, तो ढाका यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने ईस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली को ब्लॉक कर लिया। उन पे पुलिस ने फायरिंग कर दी और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो मारे गए। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 29 लोगों की डेथ हुई। बाद में ये इशू सेटल तो हो गया। मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला में 1953 में जो 7 अक्टूबर 1953 को पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पेश किया गया, उसमें दोनों लैंग्वेजेस उर्दू और बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रिकमेंड किया गया। फिर पाकिस्तान का जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें उर्दू और बंगाली को इक्वल स्टेटस दिया गया। उसके बाद 1962 में जब पाकिस्तान का दूसरा आइन बना तो उसमें भी उर्दू और बंगाली को इक्वल स्टेटस दिया गया नेशनल लैंग्वेजेस के तौर पे। ये इशू सेटल तो हो गया, लेकिन इसके सेटल होने तक ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान बहुत सारी दूरियां, बहुत सारी मिसगिविंग जो है वो क्रिएट हो चुकी थी। चौथा इशू था सेंटर प्रॉमिस रिलेशंस का। पाकिस्तान में एक बात तो बहुत वाज़ेह थी कि पाकिस्तान में फेडरल सिस्टम होगा, वफाकी तर्ज हुकूमत होगा, यूनिटरी सिस्टम नहीं होगा। लेकिन इख्तियारात की तकसीम कैसे होगी, कौन सी पावर सेंटर को दी जाएंगी, कौन सी पावर यूनिट्स को दी जाएंगी, इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी थी। हमारी जो ईस्टर्न लीडरशिप थी वो एक वीक सेंटर और स्ट्रांग प्रोविंसेस की फेवर में थी, जबकि जो वेस्टर्न लीडरशिप थी वो एक स्ट्रांग सेंटर और वीक प्रोविंसेस की फेवर में थी। आप देखें कि 1954 में जो ईस्ट बंगाल में अलायंस बना यूनाइटेड फ्रंट, जिसको जुक्तो फ्रंट कहते हैं, तो उनका जो मैनिफेस्टो था वो भी एक वीक सेंटर को सपोर्ट करता था। प्रोविंसेस के लिए, स्पेशली ईस्ट बंगाल के लिए मैक्सिमम ऑटोनॉमी की बात की गई। उसके बाद अगला सवाल था प्रिंसली स्टेट्स का। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन
565 प्रिंसली स्टेट्स थी। इंडिया बनने से पहले ही बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया के साथ एक्सीड कर लिया था। जिस दिन पाकिस्तान बना, किसी एक रियासत ने भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं किया। टोटल 12 प्रिंसली स्टेट्स ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया, लेकिन पहली रियासत जिसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया वो रियासत बहावलपुर थी। नवाब ऑफ बहावलपुर ने 5 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन किया, जिसको अप्रूव किया गवर्नर जनरल की तरफ से 9 अक्टूबर 1947 को। और आखिरी रियासत जिसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया वो रियासत कल्लात थी। खान ऑफ कल्लात ने 27 मार्च 1948 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन किया। अब इशू ये था कि इन प्रिंसली स्टेट्स का स्टेटस क्या होगा। ये ऑटोनोमस जो थी एंटिटीज थी, तो क्या एक मुल्क में 2 सिस्टम हो सकते हैं? एट द टाइम ऑफ एक्सेशन इन स्टेट्स के रूलर को ये एश्योर किया गया था, रूलर्स को, कि उनकी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन जो नए पॉलिटिकल डायनामिक्स थे उनमें एक ही मुल्क में 2 सिस्टम्स को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता था। तो ये भी सवाल था कि क्या इन स्टेट्स को मर्ज किया जाएगा, इनकी इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैसियत है उसको बरकरार रखा जाएगा। तो ये सवाल हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आइन बनाने से पहले डिटरमिन करना था। उसके बाद था फ्रेंचाइज, राइट टू वोट। हमारे कॉलोनियल मास्टर्स ने इंडियंस को पहली दफा अपने लेजिस्लेटर्स, प्रोविंशियल और सेंट्रल दोनों को इलेक्ट करने का इख्तियार दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। उससे पहले जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है उसका तरीकाकार तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत मुतारिफ करवाया जा चुका था। फिर इसी तरह जो मिंटो मार्ले रिफॉर्म थी, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 बना, उसमें भी इनडायरेक्ट इलेक्शन था। 1919 बड़े सगीर की तारीख में वो साल है जब मॉन्टेग्यू चैम्फर रिफॉर्म्स के नतीजे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोमलगेट किया गया, उसमें इंडियंस को यह इख्तियार दिया गया कि वो अपने लेजिस्लेटर्स को डायरेक्ट इलेक्ट करें। कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड थे, तो नॉमिनेटेड को गवर्नमेंट नॉमिनेट करती थी। जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनका इलेक्शन का जो तरीकाकार था वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज कर दिया गया। लेकिन तमाम इंडियंस जो थे, जो एडल्ट थे, उनको हक के राय दही यानी राइट टू वोट नहीं दिया गया, बल्कि ये राइट टू वोट रिस्ट्रिक्टेड था। और इंडियन पॉपुलेशन का 3% महज जो था वो वोट देने का अहल करार पाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो स्केड्यूल 6 था उसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, उसमें वोटर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब किया गया। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी जो राइट टू वोट था वो यूनिवर्सल नहीं था। जब किसी रियासत के तमाम शहरियों को हक राय दही हो, एडल्ट लोगों को, तो उसे यूनिवर्सल फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल सफरेज कहा जाता है। लेकिन हमारे कॉलोनियल मास्टर्स ने इंडियंस को कभी भी यूनिवर्सल सफरेज नहीं दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो स्केड्यूल 6 था उसमें वोटर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटरमिन किया गया था, जिसमें बुनियादी चीजें थी वो टैक्स पेमेंट थी या क्वालिफिकेशन थी। तो इंडियन पॉपुलेशन का महज 14 या 15% लोग ऐसे थे जो कि वोट देने के अहल करार पाए। अब जब पाकिस्तान बन गया तो यह सवाल भी दरपेश था कि फ्रेंचाइज, राइट टू वोट होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए या रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। यहां मैं ये भी बताता चलूं कि खैरपुर की असेंबली, प्रिंसली स्टेट खैरपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली पाकिस्तान में वो पहली असेंबली थी जिसके इलेक्शन यूनिवर्सल सफरेज की बेस पे हुए, जिस पे लियाकत अली खान ने कहा उसके इनागुरेट करते हुए असेंबली के सेशन को, खैरपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली को, कि खैरपुर हैज स्टोलन द मार्च। उसके बाद अगला सवाल, और यह भी बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन था, पाकिस्तान जब पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया तो पाकिस्तान के 2 विंग्स थे, एक ईस्टर्न विंग था, एक वेस्टर्न विंग था। ईस्टर्न विंग में पाकिस्तान का एक प्रोविंस था, ईस्ट बंगाल। वेस्टर्न विंग में पाकिस्तान के 3 प्रोविंसेस थे, पंजाब, सिंध, NWFP, एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस था बलूचिस्तान का, और 10 प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि वेस्ट पाकिस्तान से एडजेसेंट थी। 2 प्रिंसली स्टेट जो हैं हुंजा और नगर, वो नॉर्दर्न एरियाज में थी। तो आप समझ सकते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की 10 प्रिंसली स्टेट्स, 3 फुल फ्लैज प्रोविंसेस, एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस, तो वेस्ट पाकिस्तान में टोटल 14 यूनिट्स थे। लेकिन इन 14 यूनिट्स की आबादी मिला के पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 45% बनती थी। एक ईस्ट बंगाल प्रोविंस ऐसा था जिसकी पॉपुलेशन 55% बनती थी, यानी एक प्रोविंस 55%, बाकी सारे यूनिट्स 14 यूनिट्स मिला के पॉपुलेशन बनती थी 45%। तो अगर जो वफाकी मुकन्नना होती, जो फेडरल लेजिस्लेचर होती, उसकी सीट्स
اگر پاپولیشنز کی بیس پہ ڈیوائڈ کی جاتی تو پھر ایک پروونس پورے پاکستان کو ڈومینیٹ کرتا. اس بات پہ ہمارے جو ویسٹ پاکستان کی لیڈرشپ تھی ان کی ریزرویشن تھی. الٹیمیٹلی یہ ایشو سیٹل ہوا 30 سپٹمبر 1955 کو جب ویسٹ پاکستان کا پروونس بنا انڈر اے لا اسٹیبلشمنٹ آف ویسٹ پاکستان ایکٹ 1955، جس میں ویسٹ پاکستان کے تمام یونٹس کو مرج کر کے تینوں پروونسز کو، چیف کمشنر پروونس اور پرنسلی اسٹیٹس کو ایک پروونس بنا دیا گیا ویسٹ پاکستان کے نام سے. تو اس کے بعد پھر پاکستان کے 2 پروونسز بن گئے. یہ پالیسی 14 اکتوبر 1955 کو امپلیمنٹ ہوئی. ہم فیوچر ویڈیوز میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور پھر دونوں پروونسز کے درمیان پیرٹی اسٹیبلش کر دی گئی، یعنی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان. تو یہ وہ بنیادی سوالات تھے جو کہ ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو آئین بنانے سے پہلے درپیش تھے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم پاکستان میں آئین سازی کے سفر پہ مزید بات کریں گے کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں. آج کے لیے اتنا ہی. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.